and that has been continuing the trend. अगर आप देखोगे last 4 or 5 years से has been stability, predictability and growth, more sustained growth has been the focus. अब ये 3 चीजें अचीव करने के लिए there are सब क्राइटेरिया. तो पहला क्राइटेरिया जो अब होता है जैसे कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट, जो इंस्टीट्यूशनल रियल एस्टेट है या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जैसे म्यूचुअल फंड आकर उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया अभी ग्रोथ, उसमें फाइनेंशियलाइजेशन से काफी ये किया है. एक फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन has now been very simple कि 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अक्रॉस द एसेट क्लासेस. कोई भी लिस्टेड आप ले लो, डेथ ले लो या सिक्योरिटीज ले लो या रीट ले लो, उसमें अभी फ्लैट कर दिया. तो एकदम सिंप्लीफाई कर दिया ताकि फाइनेंशियलाइजेशन को ग्रोथ मिले. या जैसे AIF कैटेगरी 1 and 2 है, उसमें जो भी डिस्क्रपेंसी थी कि कोई कुछ इनकम वेदर इट इज बिजनेस इनकम है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको भी क्लैरिफाई कर दिया है. तो डिस्प्यूट का कोई ये नहीं होगा. तो गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट. लास्ट ईयर भी हमने बजट में देखा था जो रैशनलाइजेशन हुआ है टैक्स रेट का, दैट हैज बीन मोर टू डू विद इंप्रूविंग द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट. Hello, my name is Vikas Agrawal and I am the founder of AIF and PMS Experts India. What we have observed is that there are more than 90% of the viewers in our YouTube channel who have watched our video and have been watching our video continuously at the regular intervals but have not yet subscribed to our channel. So my submission to all of you is that please subscribe to our channel so that we can reach out to more individuals like you and spread the awareness about the whole investing game. Thank you so much. So hi everyone, thank you for taking your time out from your busy schedule. At AIF PMS Experts India, we are thrilled to announce our brand new show, which is Ask the Expert Show. Through webinars, we aim to share insight into diverse asset classes, forecasting knowledge, exchange amongst our investor community. So my name is Devanshu Bindlish and I am the Vice President of AIF PMS Experts India. With me, I have a speaker, Mr. Ashish Mundra, CIO and Head of CRE from Integro Asset Management. So welcome Ashish ji. Good afternoon everyone. Good afternoon Devanshu. How are you? I'm doing well. So let me take a moment and introduce Mr. Ashish Mundra. So Mr. Mundra has over 20 years of experience in real assets, investments, banking, trading, and engineering. He previously held position at BlackRock, Edelweiss, and West LBAG. He has managed more than $8 billion platform with 40 plus investments with successful exits. Let me talk about little bit on the education side of Ashish ji. So Ashish ji holds an MBA from NYU and MS from University of Maryland, College Park, and a BE degree from Pune University. Hello, Ashish ji. Hello. So Ashish ji, as we begin, so first of all, if you can help us that what do you feel about markets, and if you could throw some lights on market outlook, that would be a great help, Ashish ji. Yeah, so Devanshu, I think हम लोग ये market we can think about it जैसे कि उसके फंडामेंटल्स क्या है और रिसेंट वॉलेटिलिटी जो हुआ है उससे कहाँ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है. सो फंडामेंटली इफ यू लुक एट इंडिया एज अ मार्केट, इट इज एंड ये बहुत बार रिपीट हुआ है कि फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इंडिया के. और ये साल भी ये आफ्टर कोविड वी आर नाउ इन 5th ईयर, और ये 5th ईयर के बावजूद भी देयर हैज नॉट बीन अ स्लो डाउन. देयर हैज बीन सम स्लो डाउन, बट अगर हम ग्लोबली कंपेयर करते हैं तो इंडिया हैज नॉट बीन स्लोइंग डाउन. ये साल का जीडीपी जो क्लॉक हुआ है 6.4%, जिसमें से एग्रीकल्चर का 3.8 है जो 1.5 दिन लगा रहा है. बट अगर हम दो बाकी जो देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, that have been around 6.2% for manufacturing and services has been 7.2%. So the job creation in the newer sectors, which is manufacturing and services, has been the major thrust. अगर हम listed space में भी देखते हैं, listed equity में India has crossed the milestone.
10 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर क्रॉस कर चुका है टू बी ऑन द इक्विटी स्पेस, और $4 trillion हैज बीन अराउंड द मार्केट कैप. So that is a very large. अगर हम म्यूचुअल फंड में देखते हैं जहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर म्यूचुअल फंड का ग्रोथ देख रहे हैं विच इज 25% ईयर ऑन हो रहा है. लास्ट ईयर भी इट हैज शोन 25% ग्रोथ. वन एरिया जहाँ पे हमने स्लो डाउन देखा है लास्ट ईयर हैज बीन FPI एंड FDI, जहाँ पे कंबाइंड पिछले साल दैट इज 23 में $40 billion वाज इनफ्लो. इस साल विच वाज द पास्ट ईयर जो हुआ है वहाँ पे 10 बिलियन, वहाँ पे स्लो डाउन हुआ है, जिस वजह से मार्केट में जो जिटरीनेस हुआ है लास्ट 5 to 6 months वो प्रोमिनेंटली अभी दिखाई दे रहा है. बट दैट ऑन अदर साइड, फ्लिप साइड, द वैल्यूएशंस आर बिकमिंग अट्रैक्टिव. आई थिंक इन लास्ट सिंस कोविड आई थिंक द वैल्यूएशंस हैव बीन ओनली स्ट्रेच्ड, बट अभी थोड़ा उसमें ये हुआ है. अगर हम बैंकिंग सेक्टर लेते जो प्रोपेल करता है काफी सारा कैपेक्स ग्रोथ, तो वहाँ पे NPA इज नाउ एट अ डेकेड लो. जो क्राइसिस हमने 2014 में शुरू की थी विद लार्ज NPAs, जो कुछ PSU बैंक में हैज क्रॉस 10% एट वन पॉइंट, अभी वो 2.6% हो गया है एंड इट इज ड्रॉपिंग टू मोर रीजनेबल लेवल. अगर हम फिस्कल डेफिसिट देखते हैं दैट हैज इटसेल्फ ड्रॉप्ड नाउ एंड करंट अकाउंट डेफिसिट इज इन द 2% रेंज. और सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है दैट इज नाउ अबाउट 1%. तो फाइनेंशियली बैंकिंग सेक्टर या गवर्नमेंट का फिस्कल स्ट्रेंथ देखते हैं तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. दैट ऑल्सो मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज अ बिग लीवे इन केस वी एवर हिट अनदर क्राइसिस, वेदर थ्रू फिस्कल कैपेक्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग और बैंकिंग के थ्रू एडिशनल क्रेडिट इन द मार्केट. So I think overall, if you look, the Indian fundamentals are very, very strong. Short term, yes, there is some volatility, but that is given. Every 5 years, we are seeing volatility now in the market. But fundamentally, India is poised to be one of the strong economies in the world. Thank you, Ashish ji, for giving for talking about market outlook. तो अब आपको तो पता है मार्केट की आजकल की सबसे बड़ी हॉट न्यूज चल रही है बजट. तो बजट पे आप क्या बताना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को? आई थिंक अगर आप लास्ट 14 years का बजट फॉलो करेंगे तो देर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट स्पेशली सिंस कोविड जो बड़ा जो प्रिंसिपल्स दैट वी आर सीइंग by Finance Minister Nirmala ji has been that there are three main pillars what I see in the budget, and that has been continuing the trend. अगर आप देखोगे last 4 or 5 years से has been stability, predictability and growth, more sustained growth has been the focus. अब ये तीन चीजें अचीव करने के लिए there are सब क्राइटेरिया. तो पहला क्राइटेरिया जो अब होता है जैसे कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट, जो इंस्टीट्यूशनल रियल एस्टेट है या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जैसे म्यूचुअल फंड आकर उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया अभी ग्रोथ, उसमें फाइनेंशियलाइजेशन पे काफी ये किया है. एक फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैज नाउ बीन वेरी सिंपल कि 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अक्रॉस द एसेट क्लासेस. कोई भी लिस्टेड आप ले लो, डेट ले लो या सिक्योरिटीज ले लो या रीट ले लो, उसमें भी फ्लैट कर दिया. तो एकदम सिंप्लीफाई कर दिया ताकि फाइनेंशियलाइजेशन को ग्रोथ मिले. या जैसे AIF कैटेगरी 1 and 2 है, उसमें जो भी डिस्क्रपेंसी थी कि कोई कुछ इनकम वेदर इट इज बिजनेस इनकम है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको भी क्लैरिफाई कर दिया है. तो डिस्प्यूट का कोई ये नहीं होगा. तो गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट. लास्ट ईयर भी हमने बजट में देखा था जो रैशनलाइजेशन हुआ है टैक्स रेट का, that has been more to do with improving the financialization of assets. Second is आप अगर देखोगे सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन. जैसे टैक्स रेट है, अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ TDS या TCS या टैरिफ, जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको लास्ट ईयर कुछ कम कर दिया गया, ये साल और भी सिंप्लीफाई कर दिया है. तो एंड विल सी न्यू टैक्स बिल जो आने वाला है इन अ वीक, we'll see my
गेस इज दैट वो और सिंप्लीफाई कर देगा, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, जो अननेसेसरी डिस्प्यूट होते हैं, उसको गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर दे आर सिंप्लीफाइंग इट, क्लैरिफाइंग द पॉइंट, ताकि आगे इस पे कोई ये ना हो। तीसरा, ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने किया हुआ है, जैसे इस बजट में देयर इज अ सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अगर हम ये बजट में देखेंगे तो दो बड़ी चीजें मुझे नजर में आई। एक, फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं इलेक्शंस में, जैसे स्टेट्स है, दे आर गिविंग लॉट ऑफ फ्रीबीज टू वेदर कॉल इट फ्रीबी और सोशल सपोर्ट, बट गवर्नमेंट ने ये जो अर्बन चैलेंज फंड स्टार्ट किया है, जिससे स्टेट्स विल बी कॉम्पिटिंग फॉर दैट फंड, उनकी ही सिटीज डेवलप करने के लिए। सो दिस इज अ वन वे वेयर द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग इंसेंटिव। अब उसका रिपल इफेक्ट ये होगा कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विल बिकम बेटर, दैट विल क्रिएट इवन मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रियल एस्टेट। So I think growth, whether support to entrepreneurs or creating challenge funds, government is doing all they can to support. MSME has been the big job creation in India. We are seeing that now. And manufacturing, if you see, India has clocked one of the highest manufacturing PMI in the world by HSBC. So second is the amount of fiscal support that government is giving for MSME will also create a lot more jobs. That will have a trickle effect onto tax base. Tax बढ़ेगा, revenue बढ़ेगा, and more support to the infrastructure आएगा। फाइनली मुझे जो दिख रहा है, गवर्नमेंट ने इसको बैलेंस किया है फिस्कल प्रूडेंस से। एक तरफ उन्होंने सिंप्लीफाई, रैशनलाइजेशन और ग्रोथ को सपोर्ट किया है, पर दूसरे तरफ फिस्कल जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या सब्सिडी सपोर्ट है, उसको काफी तरह से उन्होंने प्रूडेंट रखा है। और इससे क्या होता है कि जो बाहर के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका भी सपोर्ट बढ़ता है, बिकॉज देयर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेज। ऐसा नहीं कि फिस्कल मिसमैच हो गया एंड देन करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट गो फॉर अ टंबल, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आई थिंक इट इज अ वेरी बैलेंस्ड बजट, वेरी वेल थॉट आउट बजट। उनके जो 3 मेन पिलर है, स्टेबिलिटी, प्रेडिक्शन एंड ग्रोथ, इट इज सपोर्टिंग ऑल ऑफ दैट, एंड वेरी फाइनली बैलेंस्ड बजट है। सर, तो आजकल आप जानते हैं इन्वेस्टर्स हमारे डिबेट करते हैं कि इक्विटी लेना चाहिए, डेट लेना चाहिए। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज दैट इन्वेस्टर ऑफन डिबेट बिटवीन इक्विटी वर्सेस डेट वर्सेस रियल एस्टेट। हाउ डू यू सी these 3 approaches playing around in the current market? I think any investor should approach debt, equity, real estate and even gold as asset classes. अगर हमको long term wealth creation करना है, हमको we have to create a wealth for not just our generation, की future generation के लिए भी, so that can only happen थोड़ा discipline से। कई यानी सिंपल सा स्टडीज है, कई बार हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल रोड्स पे भी मेनी पीपल चेंज लेन्स, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एंड टाइम रीचने में, बट एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है। तो उसी तरह अगर हम एक ही चीज पे अगर फोकस करेंगे एंड इट कैन गो थ्रू अ बिगर डाउन साइकिल वर्ल्ड में, इवन इन इंडिया, whether it is equity or whether its debt has gone through a cycle. So अच्छे talk to the financial advisor, create an investment plan and follow it as an asset allocation. जो आप अपने एडवाइजर से जो लोगे कि फॉर एग्जांपल 30% एक एसेट क्लास में, सपोज इक्विटी में, या 20% फिक्स्ड इनकम में, रियल एस्टेट में 30% है, 20% इसमें, मैं जैसे ऐसे एक रैंडम नंबर्स लिया हूँ यहाँ पे, बट फॉलो दैट। बिगर पार्ट जो हम देखते हैं, काफी सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी हम मिलते, रजिस्टर्ड RIA से, वो भी ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना इजी है, एसेट एलोकेशन करना इजी है, बट उसको फॉलो थ्रू करना इज वेरी डिफिकल्ट, और वहीं पे मिसमैच शुरू हो जाता है एंड इन्वेस्टर्स लूज मनी, जहाँ पे वो फॉलो द ट्रेंड एंड दे डोंट हैव डिसिप्लिन टू मेंटेन द एसेट एलोकेशन। So my suggestion to all the audiences is to, diversification is the only free meal in finance, and let's have a proper diversification, proper asset allocation, so that it happens, wealth gets created over time.
थैंक यू आशीष जी। तो आशीष जी, मेरा अगला सवाल ये होगा आपसे कि हाउ डज इंटीग्रो मैनेज रियल एस्टेट रिस्क? ये आई थिंक वन ऑफ द रियल एस्टेट एज अ इंडस्ट्री इज, वेदर हम पहले भी देखते हैं, वेदर आर ancestors also held lot of land and real estate. So real estate has always been a dear asset class to is what we see from family offices when we talk to HNIs, ultra HNI. It has always been a dear asset class. But काफी सारे investors का ये है कि real estate is very difficult. It is easy to buy, but it is very difficult to get out. तो काफी सारे इन्वेस्टर से जब हमने बात की तो कुछ चीजें सामने आई कि रियल एस्टेट में एक होता है कि जैसे इंस्टीट्यूशनल ग्रेड रियल एस्टेट का उनको एक्सेस नहीं, क्योंकि उसका प्राइस पॉइंट बहुत बड़ा होता है। जैसे हम अभी ऑफिस एसेट में देखते हैं तो 400 करोड़ की ऊपर की बिल्डिंग्स आर जनरली ग्रेडेड, तो इन्वेस्टर्स वो कैसे एक्सेस करेगा? दैट हैज बीन अ बिग चैलेंज। सेकंड ये कि ये इतना ओपेक मार्केट है कि ट्रांसपेरेंसी एंड कैश लीकेज इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर 500-600 करोड़ की लेते तो उसका 1% भी काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो उसको हम कैसे किस तरह से हम उसे क्लोज करें? So that is another big challenge. At Integro, what we do is we use technology to make sure there are no diversion of funds. जो फंड अलोकेट हुआ है कोई प्रोजेक्ट के लिए, उसका एवरी इनवॉइस वी चेक वेरी क्लोजली, एंड द पेमेंट्स आर मेड डायरेक्टली टू द वेंडर, एंड दिस इज ऑल ऑन आवर प्रोप्राइटरी टेक प्लेटफॉर्म। अनदर बड़ा रिस्क होता है कि प्राइस डिस्कवरी ही नहीं मालूम कि किस, क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछोगे तो बहुत बार हम ये, या जिसके पास बड़ी लैंड है, दे ओवर वैल्यू देयर लैंड, बट जब वो बेचने आते हैं तो उसका कम रियलाइजेशन होता है। तो ये एक सेंटिमेंटल होता है, एक परसेप्शन होता है कि मेरे पास इतनी एसेट है, बट उसका वैल्यू तो सेल पे ही समझता है। तो व्हाट वी डू एट इंटीग्रो इज वी डेमोक्रेटाइज दैट, देयर इज अ सेपरेट वैल्यूएशन डन, बट ऑल्सो वी कंटिन्यूसली आर इन द मार्केट चेकिंग कि किस तरह के डील्स हो रहे हैं, किस वैल्यू पे हो रही है, ताकि जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसका अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन किया जाए। एंड बिकॉज वी हैव अ डिफाइंड टाइम लिमिट जिसमें वो फंड का एग्जिट होना है, तो वैल्यू उस एग्जिट टाइम तक समझ जाती है। अनदर बिग रिस्क जैसे इक्विटी में होता है, इवन दो इक्विटी में अगर आप देखोगे प्राइस डिस्कवरी तो डेली हो जाती है, इन्वेस्टमेंट का एंट्री बैरियर भी बहुत कम है। इट्स यू नो इवन विद 1000 रुपी वन कैन इन्वेस्ट, और उस पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो भी बहुत सारी, इतने सारे रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल है। उसके बाद भी हमें एक एक्टिव एसेट मैनेजर की जरूरत पड़ती है। अगर ये सारी चीजें मिसिंग है रियल एस्टेट में, तो मोर इम्पोर्टेंट इज टू लुक एट एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हु एक्टिवली मैनेज इट, जो सिर्फ इन्वेस्ट करके पैसिव इन्वेस्टमेंट की तरह ना ट्रीट करें, बट एक्टिवली उसको मॉनिटर करें। So at Integro, we have a separate team that is headed by Mr. Mehul Naik. He's the CEO, and he continuously monitors it on a daily basis, on a weekly basis. So there are plans that are chalked out, जो उसे हर रिस्क को मॉनिटर किया जाए, and before it becomes a bigger problem, it gets resolved. तो मेरा एडवाइस यही होगा इन्वेस्टर्स के लिए कि इफ यू आर गोइंग टू डू डायरेक्ट, तो एक पूरी टीम लगती है, बट एक्टिवली मॉनिटर योर रियल एस्टेट, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी हार्ड लेटर ऑन। परफेक्ट। तो आपका क्या सोचना है कि व्हाट इज योर आउटलुक फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट ओवर नेक्स्ट 12 to 18 months? So as you are aware, we had launched our commercial India Grade A office fund on your platform. So we are seeing a lot of activity in commercial. It has now become, when we started after COVID, there was a lot of hesitance from the investors. हमने काफी deep study की थी after COVID. We spoke to a lot of tenants, lot of developers. तब बहुत ही hesitance था कि whether people will come back to office, whether but lately हमने देखा है कि
Now Grade A office has been growing very rapidly. Last Mhm. year approximately 79 million square feet का leasing हुआ था, which in itself is 16% growth year on year. But supply is only 50 million. So supply is not keeping up with the demand, is what we are seeing. In fact, supply went down by 9%. So it has become new darling. We are seeing the occupancy rates dropping dramatically. For Grade A, it is now in single digits. So very healthy occupancy is what we are seeing. Also, the rentals have seen escalations recently, more than typical 4 to 5%. So we are seeing a lot of activity. Bangalore has emerged again as a prime, roughly 30% of the market on supply and demand side. So Bangalore is the top, followed by Mumbai and Hyderabad. So they are the top cities. So we are seeing very good fundamentals. I think ये budget में भी government is putting stress on tier 2 cities, जहाँ पे they are promoting global capability center, which are essentially MNCs that have outsourced their work to India. So ये budget में government has said they are going to set up a single clearance center for setting up GCC, which is called as a multinational companies का जो outsourcing branch है यहाँ पे, in tier 2 cities. तो जो अभी फोकस रहा है टीयर 1 में, आई थिंक where tier 1 was about 15 years ago, 10 to 15 years ago, we are going to see the same growth in tier 2 cities with a renewed focus from government. Okay, thank you, Ashish ji. So Ashish ji, how do you balance liquidity with long-term capital appreciation in your portfolio? दिवांशु, हम जब काफी सारे जो RIA से बात की है, so lot of these RIAs have a very sophisticated way of looking at it. And उन्होंने essentially क्या किया है कि जो उनका asset allocation होता है, उसको उन्होंने दो अलग buckets में कर दिया है, एक liquid और एक illiquid. Okay. And so for example, we were looking at one particular allocation from a large family office. तो उनका जो allocation था वो कुछ इस तरह था, जहाँ पे उनका ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस जो होती है अपनी, जैसे स्टॉक मार्केट, लिस्टेड इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और कैश इक्विटी, उसमें उन्होंने 60% allocation किया था, और जो 40% था वो उन्होंने ऑल्टरनेट में किया था. तो जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होती है, दैट कम्स फ्रॉम जो कैश या कैश लाइक है, जैसे एफडी है, उसके थ्रू 10% में आती है. जो इमीडिएट लिक्विडिटी की जरूरत है, जो शॉर्ट टर्म है अप टू 1 year, वो डेथ म्यूचुअल फंड से आती है. एंड ऑन दी अदर साइड जो अल्टरनेट एसेट क्लास है, उसको उन्होंने 30% इलिक्विड, जैसे रियल एस्टेट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसमें किया है. और जो रिमेनिंग है वो उन्होंने 10% जो लिक्विड ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे लॉन्ग शॉर्ट फंड हो गया या कोई और हेज फंड हो गया, उसमें किया. तो आई थिंक व्हेन यू टॉक टू योर वेल्थ एडवाइजर, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क. बट देयर आर नाउ सोफिस्टिकेटेड टूल्स आ गए हैं, जिस तरह से आप एसेट की डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो थ्रू एसेट एलोकेशन, और उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी भी मैनेज कर सकते हो. और उसमें भी अभी सोफिस्टिकेटेड ये हो गया है कि अगर आपके कोई फैमिली के गोल्स है, जैसे किसी का एजुकेशन है, किसी की शादी है या नया घर लेना है, वो भी आप आपके वेल्थ प्लान में बिल्ड कर सकते हो. तो इस तरह से वी आर सीइंग फ्रॉम लॉट ऑफ फैमिली ऑफिसेस, दे आर नाउ डूइंग इट इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, which is a good thing, because that creates wealth over generation, but also makes sure कि no family has to suffer because of insolvency or any reason. Thank you, Ashish ji. Ashish ji, one last question from you, which I would like to ask. Are there any asset classes or geographies that you find particularly attractive in 2025? I think if you look at India and उसके जो strong fundamentals है, अगर हमारा
investment horizon 5 year plus है. Hmm. So whether you look at real estate, which is definitely has a very strong fundamentals, हमने residential में भी देखा है year-on-year growth of 11% now. The prices have risen in residential as well. But as the demand increases from the mid segment to luxury segment, depending upon the job growth and income growth along with it, that I think will be one where we'll see a lot of activity this year. Another is commercial real estate, where the amount of yes, there has been some short-term challenges because of these FDI and FPI pulling out some of the capital from the capital market and creating volatility. And with recent tariff announcement, and then the last 2 days we have seen currency volatility. But fundamentally, the number of MNCs outsourcing to India have been growing year on year, and the ones that are already there are also growing their employee base. So हम office में भी we are seeing a lot of activity. I think 79 million with जो नया record बना है last year. I think we will be around that range this year as the year progresses. And I think on the debt side, sovereign, that is our 10-year bonds are very well priced. Given the inflation being under control और growth जो थोड़ा कम clock हुआ है, I think there is some argument to be made कि interest rate का cut होना चाहिए ये सब, at least 25-50 basis point. Last year monetary policy में हमने देखा कि liquidity बढ़ाया गया था market में. I think the next logical step is थोड़ा interest rate cut हो सकता है. Government ने तो जैसे tax cut करके indirectly has given big support to the middle class. I think we'll see also in this year from the RBI is, I mean, of course that is our expectation, but देखते हैं कि वो कुछ support आता है क्या वहाँ से. But I think that will be one area to look at. Okay. Thank you, Ashish ji, for giving valuable insights about your fund and the markets as well. So thank you all the investors who joined this webinar to have a conversation with us. If you have any more doubts or queries, you can reach us at 8368586435 or else you can email at devanshu@aifpms.com. Thank you. Thank you.